Uh, can we go live? So I'll introduce you first and then you can come. Hello, Ocean, we are live. Natasha. Yeah, you can start off. You can start off. Natasha, okay. Hi everyone, thank you for joining in. I'm your host for the day, Oshin Saini. And this session is conducted by Innerve 2020 under Learn with Innerve. We'll learn about the strategies to crack CAPE and other competitive exams. Today, we have with us a very special speaker, Mr. Sunil Kumar Tiwari. He's an esteemed senior faculty member and former head of department at Made Easy Institute. Thank you so much, sir, for agreeing to share your knowledge and experience with us. You can drop in any questions in the chat section. We'll take them in the end of the session. Over to you, sir. Thank you. Good evening, friends. I hope you all are safe during these difficult time of global pandemic. And this is a very difficult time through which all of us are going. And this time in these duration of the global pandemic, we need to take care of our health. And as well as we need to plan about our career also, because this is the time of high uncertainty. And especially when the global economic market and global job market is shrinking, then we need to plan properly about the career. Believe me, there will always remain certain opportunities. चाहे वो वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशंस थी, आफ्टर दैट देयर वर सम अपॉर्चुनिटीज, या इससे पहले जब भी पैंडेमिक आए, आफ्टर दोस पैंडेमिक आल्सो देयर वर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. But when this kind of global phenomena takes place, then opportunities shrink, and those who develop some new skills, yeah, those who develop some skills which are required to perform the duties, yeah, better than the other persons, they actually don't face any kind of difficulty to get job. But those who don't develop new skills, yeah, those who don't plan properly their career, they may feel some difficulty in starting their career. So in this session, I would like to share lots of things, how you should plan your career in this difficult time, and what are the important things which you keep in mind before starting to plan your career, and what are the various options available. That's why I have named the session What After BTech. So basically I will try to focus myself to what are the various options available after BTech. देखिए, हर सिचुएशन को देखने के दो नजरिए होते हैं. देयर इज अ वन पॉजिटिव साइड एंड देयर इज अ वन नेगेटिव साइड. So I will say that ki see the positive aspect of this COVID-19 period also. What is the positive aspect of the COVID-19? That we are getting lots of time, we have sufficient time, and we can use this time in our preparation for the various competitive examination. Yeah, we can use this time to plan for our career. Yeah, we can use this time to get some new certificates, yeah, to develop some new skills. So we need to know what kind of set of the skills are required for the job market, and what kind of the things we need to develop in our day-to-day activity, or what kind of the skills we need to develop. So we should take this time as an opportunity. देखिए, अगर पैंडेमिक ना भी आया होता, और अगर आपने एक आदत डेवलप कर ली होती टू गिव एक्सक्यूजेस फॉर द फेलियर, देन ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर मिलता है. यू मे गिव एक्सक्यूज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, यू मे गिव एक्सक्यूज फॉर द हेल्थ कंडीशंस, और यू मे डेवलप सम न्यू काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. So एक बड़ा की वर्ड है कि most of the people suffer from more dreadful disease, and that disease is known as excusitis. So if you start giving excuses, तो चाहे वो पैंडेमिक का एक्सक्यूज हो या कोई और एक्सक्यूज हो, you will definitely get some kind of excuse for your failure. लेकिन अगर आपने एक्सक्यूज ना देने की आदत डेवलप कर ली, कि you develop a habit to see the positive aspect of every circumstance, then your life will lead to the new dimensions, your life will lead to the higher dimensions, and you will always find a way. So if you have a strong willpower, then no matter what kind of the job scenario, what kind of the global market, you will always find a way to get a good job, to make a good career. So you need to develop that kind of positivity in your thinking process. If you really want to do something, you will find a way, and if you don't want, you will find an excuse. So before starting the session, I would like to say that you start to develop the positive, to see the positive aspect of the things, and you start to see in a broader way
कि this pandemic will get over in 1 month, 2 months, या 1 year, 2 year at max, and then after you have to live a very healthy, happy and prosperous life. So to live that healthy, happy and prosperous life, you need to work from day onwards, so that you can get a good job, so that you can start your career in a good field. First of all, you need to take a diary, and in that diary you need to write each and every minute detail related with your career. I mean, some of the people may be wanting good sum of money, expecting good sum of money. Some of the people may be expecting a very social recognition from their job, and some of the people may be expecting mix of both of the things. So what kind of expectation is from your career? You need to define it at the very early stage, and according to your expectation, you need to search what are the job options available in the market. So keeping in all these things in mind, I'm going to discuss few important things with you in this session of almost 1 hour. First of all, what you need to do is self introspection is very much required. True success lies in knowing your weakness and playing at your strength. सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि what kind of skills you are having, what is your strong point, what is your weak point. For example, मैं strong point से मेरा मतलब ये नहीं है कि you do singing very well. If you do singing very well, then make your career in the field of singing. बट अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रिलेटेड विद इंजीनियरिंग. फॉर एग्जांपल, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, दिस इज योर स्ट्रेंथ. सपोज योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, दैट इज योर स्ट्रेंथ. सपोज you are very good in mathematics, that is your strength. Suppose you are very good in engineering subjects, that is your strength. So सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ फिगर आउट कर लीजिए. Then you figure out what is your weakness. That is also very important, and equally important, you need to figure out what is your weakness. Suppose you are a person जो एक दिन में 3-4 घंटे से ज्यादा या 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता है. This is one of the big weakness. So you cannot target for the big competitive examination, because for the big competitive examination there is a huge syllabus and you need to study 4-5 hours every day in continuity. So figure out what is your weakness. या इस तरह से भी आपकी weakness हो सकती है कि you need a long sleeping hour every day. अगर आप 8 hours 9 hours नहीं सो रहे हैं तो आपका brain काम नहीं कर रहा है. तो if you are that kind of person who need long sleeping hours, that is also a weakness. So according to your strength, you need to decide what can be your career plan. Suppose you are very good in mathematics but very poor in general studies, then try to figure out those competitive exams where mathematical skills are being judged to get entry, and don't go for those competitive examinations where general studies knowledge will be checked. So my aim to tell is try to play on your strength and don't get trapped in those examinations which are related with your weak point, which are related with your weakness. अब इसके अलावा दूसरी एक और चीज है कि you need to always polish your strength. You make more sharper to these strong points, and you need to rectify your weaknesses. You need to remove these weaknesses. आप 8 hours सोते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करिए उसको 7 पर लेकर के आइए, 6 पर लेके आइए. 6 is good every day. So इसी तरह से आप 2 hours every day स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाना स्टार्ट करिए कि 2 से पहले 3 hours पर जाइए, 4 hours पर जाइए. To try to remove your weaknesses and try to sharpen your skills या your strong point. तो depending upon your strength, you need to define कि आपका target exam क्या है. Before deciding the goal, या target exam कह लो या target career कह लो, career option कह लो, job कह लो, जो कुछ भी आप कह रहे हो. So before deciding your goal, you can take 10 days time, 20 days time, 1 month time, 2 month time, 3 month time. But once you have decided that this is my goal for the next 1 year, or for the next 2 years, I have to achieve this goal, then don't look back. What most of the people do is they start for any particular job. Suppose you start preparing for GATE, suppose you are start preparing for UPSC. So you started with very high energy, and after 1 month, 2 months, you start to thinking about it that ये गलत option हमने चुन लिया. That is the worst thing. Once you started it, then don't look back. चाहे जितना आपको कोई कहे कि इसमें सीट्स कम है, इसमें ये डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, कुछ भी लोग कहते रहे, बट डोंट लुक बैक.
But before deciding, you can take lots of time. You can see the pros and cons of each and everything, कि ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है या क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होने वाली है, इसमें समय कितना लगने वाला है. You can take all those things into account before taking decision. But once you have taken decision, then don't look back. अब next thing जो आते हैं important, कि before deciding the target exam, you need to figure out कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. Until and unless you don't know about all the options, हो सकता है कि आप wrong decision ले लो. Just for example, I am telling about myself. मुझे एक ऐसी जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन चाहिए था जहां पर मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स का भी यूज कर सकूं और मैनेजमेंट स्किल्स का भी यूज कर सकूं. अब मोस्टली होता क्या है कि अगर आप टेक्निकल एग्जाम के थ्रू जाएं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के थ्रू, जहां से मैं गुजर करके निकला हूं, आई वाज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ ब्रीफ टेन्यूर, सो वो मोर ओवर टेक्निकल जॉब्स थी. आई वाज नॉट एंजॉयिंग देयर. अगर आप मेनली मैनेजमेंट की फील्ड में जा रहे हैं तो एमबीए करके जाना पड़ेगा. वहां पर भी मेरे कुछ वीक पॉइंट्स है. आई वाज नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स या एट दैट टाइम, या मेरी थोड़ा सा रीजनिंग में भी उतना ज्यादा, रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी वगैरह में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. सो अगर मैं उस फील्ड में जा रहा हूं तो भी सेटबैक मिलेगा. I was not knowing about one college that is known as NITI Mumbai. NITI Mumbai actually offers you MBA in manufacturing management. Yeah, it offers you MBA in industrial engineering. So the nature of the course is basically somewhere techno management, and that was best suited according to my interest. But उस समय मुझे नहीं पता था उस कॉलेज के बारे में, तो मुझे बाद में बहुत regret फील हुआ. हालांकि आफ्टर 2-3 years of the struggle I get a job where I was satisfied, लेकिन वो 2-3 साल मेरे बेकार गए. तो वो चीज मेरे लिए कहीं ना कहीं एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि एट द वेरी अर्ली स्टेज यू मस्ट नो अबाउट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन according to your strength, according to the expectation of your family, not only family, even your expectation. सबसे important आपकी expectation है, तो according to your expectation, या down the 5-year line, down the 10-year line, where do you want to see yourself. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक career select करिए. So in the next few minutes, I am going to discuss about all the options and about the positive aspect of those options and negative aspect of those options. I will try to discuss in brief also. देखिए, after BTech you have mainly 5 ways. First one, you can go for the government sector technical job, core technical job, where you need to sound engineering knowledge, good technical knowledge to perform your duties. Then next one, you can go for the private sector technical job. And the next segment is you can go for the government sector non-technical job, जहां पर इंजीनियरिंग के नॉलेज की जरूरत नहीं है. These jobs can be administration, management, finance, इन सब किसी भी फील्ड में ये जॉब्स हो सकती हैं. Then you can go for the private sector non-technical jobs. ये तो 4 ऑप्शंस आपके पास जॉब के सेगमेंट में अवेलेबल है. देयर इज वन मोर ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं. जो अभी की इंडिया है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है. सो वी हैव अ वेरी गुड मार्केट. और एक बिजनेस के लिए क्या चाहिए कि आपके पास प्रोडक्शन करने की क्षमता हो और उसको बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट होनी चाहिए. सो देयर इज अ लार्ज मार्केट अवेलेबल, इसमें कोई डाउट नहीं. अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो की पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि यू नीड टू फिगर आउट द प्रॉब्लम ऑफ एनी सेक्टर. किसी सेक्टर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए एंड देन कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशन एंड द चीपेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. एक एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को. जैसे कि पहले जब फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह ये सब नहीं थे, तो हम लोग मार्केट में जा करके शॉपिंग करते थे. ठीक है, तो मार्केट में शॉपिंग करते थे, धक्का मुक्की खाते थे, गर्मी में झेलते थे इधर उधर. देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन शॉपिंग. फ्लिपकार्ट आया, उसने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एक ऑनलाइन शॉपिंग का माध्यम दिया जो कि हैसल फ्री है, सस्ता है और बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है. बिजनेस सक्सेसफुल हो गया. इसी तरह से कैश की प्रॉब्लम हुआ करती थी कि कहीं हम रिमोट लोकेशन पर चले गए, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है. पेटीएम आया, उसने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एक नए सॉल्यूशन के साथ में आया. सो व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू कि यदि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, so you need to figure out the problem of any sector and come up with the best solution for that problem. अगर ये दोनों चीज आप कर ले जाएंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है.
You need to develop a very high risk taking capacity. You need to develop a good leadership quality. You need to develop a good management skills. ये सारी चीजें तो आपके अंदर इनहेरेंट डेवलप होनी ही चाहिए. सो उसके साथ साथ एक जो बड़ी चीज चाहिए कि यू नीड सम कैपिटल, सम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस. अगर अभी एक फ्रेशर के तौर पर यू डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स, देन आप शुरुआत में 2 इयर्स 3 इयर्स किसी इंडस्ट्री के साथ अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं. थोड़ा सा कुछ लर्न कर सकते हैं. ह्यूमन मैनेजमेंट आपको वहां समझने में आएगा, लोगों के साथ किस तरह से काम किया जाता है, टीम वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें आप डेवलप कर लेंगे. और थोड़ा सा आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी. देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. और आप कहीं ना कहीं कोई फाइनेंसर या लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन स्विच टू द प्राइवेट जॉब, but vice versa is not possible क्योंकि most of the government jobs के लिए there is an upper age limit कि 30 years या 30 या 27 year, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. so vice versa option is not easy, but from government to private आप किसी भी moment of time पर जा सकते हैं, या from jobs at any moment of time you can switch to your own business. 40 year की एज में, 45 year की एज में, 30 year की एज में, 35 year की एज में, at any moment of time you can switch to your own business. Lots of persons switch to business at the later stages of their career या लाइफ. जैसे आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, देन आई स्विच टू द प्राइवेट जॉब. अभी मैं प्राइवेट में हूं और स्टार्टिंग मैंने गवर्नमेंट के साथ किया. आगे कोई नहीं जानता, मे बी आई कैन गो देयर आल्सो. सो गवर्नमेंट नॉन टेक्निकल जॉब या प्राइवेट नॉन टेक्निकल जॉब, यस, वहां से आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू आंसर इन योर डायरी, जो आपकी करियर प्लानिंग की डायरी है, उसमें जो पहला एसी नहीं चलाया क्या भाई, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी करो कुछ. जो करियर प्लानिंग की आपकी डायरी है उसमें यू नीड टू आस्क वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पूछना है वो ये क्वेश्चन पूछना है कि आप जॉब कहां करना चाहते हैं. पहले तो आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं. अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कहां करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेज हैं. देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस रिलेटेड विद द गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे देयर इज अ हाई सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, देयर इज अ गुड सोशल रिकॉग्निशन एसोसिएटेड विद द जॉब. बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब आल्सो, बिकॉज फॉर एग्जांपल यू गेट अ वेरी स्लो कैरियर ग्रोथ. चाहे जितना आप मेहनत करो लेकिन देयर इज अ टाइम बाउंड कैरियर ग्रोथ. सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्या मैंने बताया, डिसएडवांटेजेस भी आपके सामने आ गए. इसी तरह से प्राइवेट जॉब के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द जॉब. करियर सिक्योरिटी उतनी ज्यादा नहीं है. लेकिन जो एडवांटेज है कि इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन यू कैन गेट अ वेरी स्टीप ग्रोथ. सो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेक्टेशन या योर लाइफ स्टाइल. जैसे अब एक बड़ा कंफ्लिक्टिंग पॉइंट आता है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब देयर इज अ फिक्स्ड टाइम स्लॉट टू वर्क कि 10 to 6 आपको काम करना है. बट इन प्राइवेट जॉब यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क, कि आपके पास टाइम स्लॉट की फ्लेक्सिबिलिटी है. तो सम ऑफ द पर्सन टेक दिस फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एडवांटेज एंड सम ऑफ द पर्सन टेक दिस फ्लेक्सिबिलिटी एज अ डिसएडवांटेज. फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कहा जाए कि अगर एक फिक्स्ड शेड्यूल है तो मेरा पूरा दिन उसके हिसाब से डिफाइन हो जाता है. मैं बाकी का जो समय है उसे अदर एक्टिविटीज जैसे अपनी हॉबी के लिए या फैमिली के लिए या अदर चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं. लेकिन मैं वहीं पर कई लोगों को देखता हूं कि उनको ये चीज नहीं अच्छा लगता है कि दे गो फॉर अ टाइम बाउंड जॉब. उनको लगता है कि दे नीड अ फ्लेक्सिबल टाइम, तो वो आराम से सो करके जागेंगे, जब मन करेगा तब जॉब पर जाएंगे. सो दे प्लान देयर डे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको प्राइवेट की लाइफ अच्छी लगती है या गवर्नमेंट की लाइफ अच्छी लगती है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जजमेंट लीजिए कि वेदर यू आर वांटिंग टू मेक योर करियर इन प्राइवेट सेक्टर या यू आर वांटिंग टू मेक योर करियर इन गवर्नमेंट सेक्टर. सो ये बड़ा डिसीजन आपको यहां पर लेना होगा. सो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो कुछ पॉइंट जिन पर आपको कंपैरिजन करना चाहिए. पहला, रिक्रूटमेंट एंड कंपटीशन. both of the places you have to face competition if you are going for the good job. अगर कोई आपको ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा कंपटीशन होता है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है. एक्चुअली इफ यू कंपेयर विद द सेम स्केल जॉब, कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट यू आर गोइंग फॉर द ग्रुप ए जॉब, एंड उसी स्केल की अगर जॉब आप प्राइवेट सेक्टर में देखो तो यू विल फाइंड द सेम लेवल ऑफ कंपटीशन इन बोथ ऑफ द सेगमेंट. दूसरी चीज, गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफाइंड प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट, कि एक एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा. बट इन प्राइवेट इफ यू गेट कैंपस प्लेसमेंट
placement, it's okay. If you don't get campus placement, then there is no defined procedure. So you need to check on this parameter, that is the recruitment procedure and competition. The first thing. Second thing, salary. If you get good placement from the campus, and in your campus good companies are visiting, then they may provide a very good placement, yeah, very good salary package. But if you get off campus job, then some of the companies, private companies, provide only 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh package, while in government sector you will get at least 10 to 12 lakh package even in the mini Ratna status company. And if you are going for the Maharatna status companies, then you may get 20 lakh, 22 lakh, like that kind of package also. So salary is also one criteria, but it is very variable. It depends upon the college profile also. You belong from IITs, then the private companies get better placement, better packages, better other benefits apart from the salary to their employees. But if you go from the normal colleges, from the private colleges, then the recruiters of those colleges pay very less amount as compared to the government job. So depending upon your college and depending upon the previous record of the placement, you need to check whether the salary is better than the government. Yeah, it is less than the offered by the government jobs. Job security, always government jobs are secured. जैसे अभी global pandemic है, तो you may have seen that in private organizations, in reputed private organizations, people were fired, but in government jobs कोई भी निकाला नहीं गया. तो there is a high job security always associated in government job. Work schedule, जैसा मैंने पहले ही बताया कि दो तरह के work schedule होते हैं. Government में there is a fixed time slot, जबकि private में you need to work according to the requirement of organization. Work stress, at the both places there is a work stress. Benefits and perks, गवर्नमेंट में बेनिफिट्स कुछ इस तरह से होते हैं कि विल गेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, घर मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन प्राइवेट में जो बेनिफिट्स होते हैं कि शेयर के टर्म्स में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कि विल गेट द शेयर ऑफ द कंपनी, या यू विल गेट अ हॉलिडे पैकेज. सो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड पर्क्स आर अट्रैक्टिंग यू, डिपेंडिंग अपॉन यू टेक डिसीजन. एंड देन प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, ये गवर्नमेंट की ड्रॉबैक है. इन गवर्नमेंट प्रमोशनल एस्पेक्ट्स आर टाइम बाउंड. So if you are doing very hard work, still you will get first promotion after 3-4 years. But in private organization, promotions are the according to your work, yeah, according to the effort put by you, according to your skills. So in case of private organization, you may get exponential growth. लेकिन इसका दूसरा भी एस्पेक्ट है. यदि आप हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं है, तो गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड फॉर यू है, क्योंकि वहां पर टाइम बाउंड प्रैक्टिस है. अगर एक बार आप एंट्री पा गए, तो आप आगे कम भी एफर्ट पुट करेंगे तो भी उतने समय के बाद यू विल गेट प्रमोशंस. बट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डे यू हैव टू बीट अ कंपटीशन एंड यू हैव टू परफॉर्म, देन ओनली यू विल गेट प्रमोशन. सो प्रमोशनल एस्पेक्ट पर भी आपको कंपैरिजन करना चाहिए. सोशल रिकॉग्निशन, इन सम ऑफ द प्लेसेस, जैसे इफ यू बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इफ यू बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, बिहार, इन दीज प्लेसेस गवर्नमेंट जॉब्स आर हैविंग very good social recognition. So वो भी एक तरह का बेनिफिट है. जबकि if you belong from Delhi, then it hardly matters whether you are in government job or private job. That is not much related with the social recognition. So depending upon your society, your family background, you need to decide whether government jobs get more social recognition or private jobs get more social recognition. And on these points you need to define. Holidays, obviously government will give you more holidays as comparison to the private jobs. So आप इन पॉइंट्स में क्या करिए कि अपनी जरूरतों के हिसाब से देखिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए फेवरेबल हैं और कौन कौन से आपके लिए फेवरेबल नहीं है. जो मैक्सिमम चीजें आपके लिए अगर गवर्नमेंट में फेवरेबल है, तो ट्राई टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. अगर मैक्सिमम चीजें आपके लिए प्राइवेट में फेवरेबल है, तो ट्राई टू गो फॉर द प्राइवेट जॉब्स. नेक्स्ट आते हैं कि आफ्टर बीटेक हम जा कैसे सकते हैं. व्हाट इज द वे टू एंटर इनटू द जॉब मार्केट. सो फर्स्ट वन इज कि आप बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जा सकते हैं. दूसरा तरीका है यू कैन गो विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में या अपने बिजनेस के लिए एंटर कर सकते हैं. थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स या हायर स्टडीज. कोई भी गवर्नमेंट जॉब बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको नहीं मिलेगी. यू नीड टू क्रैक अ नेशनल या स्टेट लेवल कंपटीशन, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू द गवर्नमेंट जॉब. बट फॉर प्राइवेट जॉब्स you can go with the campus placement. Yeah, there are certain websites या consulting agencies, they offer you off campus placement also. I will discuss later about those companies. So if you want go without competitive examination, although it is an easy path if you get campus placement. If you don't get campus placement, you will face a huge competition in this market also. So you need to keep in mind these things before selecting this path या before choosing this path. पहला चीज,
थ्रू कैंप आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। मैंने बताया ही कि आप किसी सेक्टर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आइए एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। देन कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, कैंपस प्लेसमेंट आफ्टर कोविड इट विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। अगर पहले आपके कॉलेज में 50 कंपनीज विजिट करती थी, तो हो सकता है कि नाउ वेरी लेस नंबर ऑफ कंपनीज विल विजिट योर कॉलेज, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इज गोइंग टू श्रिंक, इकोनॉमिक मार्केट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। आपने देखा है कि फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी का डेटा आया है उसमें -24% की ग्रोथ हुई है, निगेटिव ग्रोथ हुई है बेसिकली। तो ग्रोथ नहीं हुई है, वो एक्चुअली ग्रोथ क्या कहें उसको, हम ये कहें कि हम रिटार्डेशन की तरफ हैं, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है। सो नाउ यू आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज कंपटीशन इन कैंपस प्लेसमेंट आल्सो, although within your college, but you are going to face competition. So how you should prepare yourself for those jobs? तो सबसे पहले तो आप अपना सीजीपीए बहुत अच्छा रखिए, ताकि किसी भी कंपनी से आप बाहर ना हो। जैसे सम ऑफ द कंपनीज पुट अ क्राइटेरिया कि 7.5 या 7 या 70% या 65% से बिलो कैंडिडेट जो स्कोर कर रहे हैं, दे कैन नॉट अपीयर। सो यू नीड टू एटलीस्ट स्कोर दैट मच परसेंटेज या सीजीपीए कि सभी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल रहे, इस पर ध्यान दें। सेकंड बिग थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड की अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। ऑलमोस्ट इन एवरी कैंपस प्लेसमेंट दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच विल बी आस्क्ड इन द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग के लिए, ठीक। थर्ड, आप इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना स्टार्ट करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश में खास करके वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है उस पर भी काम करना स्टार्ट करें। Try to get involved in extracurricular activities also. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से मेरा मतलब है कि why it is required, why extracurricular activities are required. With the help of these extracurricular activities, you can actually show your management skill, you can show your technical skill, yeah, you can show your leadership skills. So you need to get involved in these kind of extracurricular activities to show your different skills as different skills along with the CGPA, ठीक। सो इन पर भी आपको जाने की जरूरत है, इन कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखने की। अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कर लिए हैं तो और भी अच्छा है, जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग या इनसे जुड़ी हुई चीजें भी आती हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, बट along with that you need to know about some of the websites, जैसे एक ई-लिथमस करके वेबसाइट है, उस पर आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं, या एक MCAT करके वेबसाइट है, उस पर आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर में समवन इज वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके थ्रू आप इंटरव्यू के लिए अपनी सीवी को भेज सकते हैं। सो यू नीड टू चेक कि व्हाट इज द चैनल, देयर इज नो डिफाइंड प्रोसीजर कि आप कैंपस किस तरह से प्लेसमेंट पा सकते हैं। समवन इज इन्फ्लुएंशियल इन योर फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, you can take the help of that person also for forwarding your CV, your resume. Internship programs, some of the colleges give you internship programs. So although these internship programs are 3 months or 2 month duration, but if you are doing very good in internship program, so some of the companies actually take you on the permanent basis, they give you employment. So internship programs should be taken as opportunity and you try to convert that internship program in full-fledged job. So wahan par bhi aap dhyan de sakte hain, that may be also a way. Then certification programs, there are different kind of certification programs, like for the computer science or electronics students, they can go for the some coding certification programs, yeah, they can go for the artificial intelligence certification programs. There are certification programs related with the digital markets, digital marketing, yeah, there are certification programs related with robotics. So इस तरह की चीजें जो nowadays इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उनके बारे में पता करिए, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 2 मंथ 3 मंथ या 5 मंथ का सर्टिफिकेशन देती हैं, तो उनके हेल्प लेकर के एंड यू कैन एंटर इनटू द जॉब मार्केट। एंड देन लास्ट वन, यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट। सपोज यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, you can start your coaching, you can associate yourself with any coaching industry to make a good career. Yeah, you are very good in physics, या आप किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बन सकते हैं। So you can become an expert of certain particular of a particular field and you can start your career there. Next option है through competitive examination. Although it is a little bit difficult, because in a country of 130 crore population where every year 15-16 lakh engineers are graduating, so उस country में competition तो बहुत होगा,
but it is a defined procedure. It is a procedure where you know that कि इस मंथ में फॉर्म आएगा, इस मंथ में रिजल्ट आएगा, इस मंथ में इंटरव्यू होगा. So there is no uncertainty associated. जबकि आप देखें कि अगर कैंपस प्लेसमेंट ना हो तो प्राइवेट जॉब में बहुत अनसर्टेनिटी है कि किसके थ्रू अप्रोच करना है, कहां जाना है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है. हियर एवरीथिंग इज डिफाइंड, although you need to develop a sound knowledge to crack any national level competition. So first of all, let us discuss what are the options available through competitive examination. First option, you can go for the government jobs, and second one, you can go for higher studies. I will suggest you if your family and financial conditions permit you, then go for the higher studies. Continuity में आप जितनी भी डिग्रीज ऐड कर लेंगे, that is going to help you in future. जितना ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतना लेस एफर्ट पुट करना पड़ेगा हायर अर्निंग के लिए या बेटर लाइफ जीने के लिए. जितनी कम क्वालिफिकेशन होगी, यू नीड टू पुट मोर एफर्ट फॉर द अर्निंग या यू नीड टू पुट मोर एफर्ट फॉर अ गुड लाइफ. So if your family and financial situations permit you, then go for the higher studies. And if your family and financial situations are not permitting you, then go for the jobs after BTech. In case of jobs, we are having two kind of option, one central government option and another state government option. In case of central government, the best one is civil services, that is popularly known as IAS. कल इसका एग्जाम है 4th of October को, ठीक. So in civil services actually you will be recruited as group A gazetted officer in the various departments of government of India. The nature of the job is administrative, नॉन टेक्निकल जॉब है. सो यहां पर जो आपका नॉलेज चेक होगा वो इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं चेक होगा. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर्स. सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स, देन प्लान फॉर दिस, अदरवाइज लीव दिस, because in-depth knowledge will be checked during the screening stages. 3 stage में एग्जाम होता है, prelims, mains and interview. So your knowledge will be judged on each of these stages. So अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो इसके लिए प्रिपेयर करिए. यहाँ पर 800 से 1000 के बीच में सीट हर साल निकलती हैं, and this is the topmost job of our country. You will be invested with the great power. आप अभी देख रहे होंगे न्यूज, अगर आजकल न्यूज देख रहे होंगे तो उसका एक एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के पास कितनी बड़ी पावर होती है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी धक्का मुक्की कर सकते हैं. although that is not good, good bad की डिफिनेशन बाद में हम लोग कर लेंगे. But what I'm going to tell you कि these are the jobs which are going to give you immense power, and these are actually the best job. These bureaucrats actually virtually run this country. So ये टॉप मोस्ट जॉब अपने देश की है और इसके लिए आप जा सकते हैं. 800 से 1000 के आसपास पोस्ट होती हैं जिसमें 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपीयर करते हैं. So there is a huge competition, ये भी आपको जानना चाहिए. Then second one है engineering services, that is known as IES, popularly Indian Engineering Services. Here you will be again recruited as group A gazetted officer post, but in various technical departments of government of India. So obviously as comparison to the civil services, engineering services का operating domain कम हो जाएगा तो practical powers कम होती हैं, but both are of the same cadre officer, both are group A gazetted officer of government of India. यहाँ पर competition भी within engineers होगा और within your branch होगा. यहाँ पर 4 branches होती हैं, civil, mechanical, electrical and EC. तो आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इन्हीं चारों में से किसी एक में अपीयर कर सकते हैं. तो आपको किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम. Then you will be recruited as the recruited for the techno management job. Although you have to do a management, but that management will be the technical management. So again, very good job, and engineering field में topmost job होती है. यहाँ competition as comparison to the civil services बहुत कम है. जैसे within your branch competition होगा. Electronics को mechanical से competition कराने का कोई फायदा नहीं, because both of the branches are totally different. So your competition will be within your branch. जिस भी branch से आप apply कर रहे हैं उसी branch में आपका competition होगा. So roughly 50 से 60,000 students के बीच में competition होता. ओवरऑल 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं, बट 4 ब्रांचेस का अगर एवरेज ले लो तो 50 to 60,000 स्टूडेंट्स किसी एक ब्रांच में होते हैं. So as comparison to the civil services, engineering services में बहुत कम competition. Then public sector units through gate recruitment होता है, मैं इनके बारे में बाद में बात करूंगा. Then you can make your career in defense sector also. डिफेंस में 2 तरह की जॉब हो सकती है. एक तो हो सकती है नॉन टेक्निकल जॉब. नॉन टेक्निकल जॉब के लिए डिफेंस में आप जा सकते हैं CDS के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम.
और इसके थ्रू आप जा सकते हैं। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अगेन यू नीड वेरी गुड नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज, क्योंकि पेपर उसी से बनेगा, और मैथमेटिक्स भी होती है इसमें। देन नेक्स्ट आप जा सकते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में अगर आपको जाना है तो दो तरीके हैं, एक तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा सेपरेट एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे एएफ कैट वगैरह है, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स को टेक्निकल फील्ड में रिक्रूट करते हैं, तो इन एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हैं। या आप रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर डूइंग रिसर्च फॉर डिफेंस, जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, बीएआरसी है, सो यू कैन गो फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। इनमें कैसे जा सकते हैं मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यू कैन स्टार्ट योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर आल्सो। आप बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे बैंक पीओ में आईबीपीएस के थ्रू। Although I will advise that कि present economic condition में Indian banking sector is struggling, so it should be the least preferred career option। सबसे बाद में जब कुछ भी ना मिल रहा हो तब इसकी तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज इसको स्किप करना चाहिए। Then SSC में you will be recruited as a Group B non-gazetted officer through Staff Selection Commission। तो यूपीएससी के थ्रू ग्रुप ए ऑफिसर होंगे और एसएससी के थ्रू ग्रुप बी ऑफिसर होंगे। सो आप एसएससी में भी दो तरह की पोस्ट होंगी, टेक्निकल भी होंगी, नॉन टेक्निकल भी होंगी, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ दीज, चाहे टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल में किसी में जा सकते हैं। देन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दे रिक्रूट फॉर जूनियर इंजीनियर या सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अगेन ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है। द सिलेबस ऑफ आरआरबी इज ऑलमोस्ट सेम एज द सिलेबस फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सो जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम होता है लगभग उसी से मिलता जुलता होता है, ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। देन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है उसी से मिलता जुलता आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है। वेरियस स्टेट्स अपने एग्जाम कंडक्ट कराते रहते हैं। Next, if we talk about the higher studies, then GATE is gateway of opportunities. With the help of GATE scorecard, you can go for MTech, you can go for PhD, you can go for MBA also, you can go for MS program out of India also, you can go for MBA program out of India also, you can go for the government sector group A job, you can go for the public sector jobs, you can go for the research oriented job. In short, I will say that what all opportunities are available after BTech, all those opportunities can be taken care by the good scorecard या good performance in GATE। सपोज GATE में आपकी अंडर 50 रैंक आ जा रही है, तो जितने भी बीटेक के बाद आपके पास करियर्स अवेलेबल हैं वो सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। सो इट इज एक्चुअली गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस in this scorecard। Suppose you are having rank under 100, you will get job opportunities। Suppose you are having rank under 1000, then you may get job opportunities as well as you may get opportunities in IITs also। IIT से एमटेक या पीएचडी कर सकते हैं। 1000 के बाद आपकी रैंक जा रही है तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं रह जाएंगी। उस गेट के स्कोर कार्ड से आप एमटेक या पीएचडी या एमबीए के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रह जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 2000 प्लस रैंक चली जा रही, दिस आई एम टेलिंग फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, रिजर्व कैंडिडेट के लिए उसी के अकॉर्डिंग वो जज कर लेंगे। सो इफ यू आर गेटिंग अ रैंक 2000 above, then you may get admission in NITs, IITs आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर 3-4,000 के अबव रैंक होती है तो यू मे गेट एडमिशन आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज में थोड़ा मुश्किल होता है, कंपटीशन होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन गेट, यू कैन हैव वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉब, एमटेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पीजीडीआई, पीजीडीएमएम, सीएसआईआर, बीआरसी, डीआरडीओ, मास्टर ऑफ साइंस अब्रॉड जाकर के, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स या एमएनसीज। देन कैट के थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना करियर बना सकते हैं। देन जीआरई या जीमैट के थ्रू अब्रॉड जा सकते हैं आफ्टर बीटेक फॉर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम या एमबीए के प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ एवरेज फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात कर रहा हूं, देन यू शुड नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज यू हैव टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट, 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट। देन यू कैन चेंज योर पाथ। आप क्या करें, इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी एनआईटी से एमटेक करें। इंडिया में एमटेक इज अ हाईली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, 12,400 रुपीज एवरी मंथ यू विल गेट एज एन स्कॉलरशिप एंड दैट इज सफिशिएंट टू सपोर्ट योर स्टडीज। सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एमटेक हो जाएगा एंड आफ्टर एमटेक यू कैन गो फॉर पीएचडी।
every developed country provide a good sum of scholarship for the PhD students. जैसे सिंगापुर है 1.25 लाख के आसपास, यानी 1.2 से 1.3 लाख के आसपास कुछ है, एग्जैक्टली मुझे अमाउंट नहीं याद है. सो अ वेरी गुड अमाउंट दे प्रोवाइड monthly basis for the PhD scholars to support their studies and to support their family or financial requirements, जो कुछ भी है. तो यदि आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो आफ्टर बीटेक जाइए, लेकिन अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आफ्टर एमटेक आप अपने करियर के बारे में प्लान कर सकते हैं. सो दीज आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो अब तक हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्या क्या रास्ते अवेलेबल है. यहां एक प्रॉब्लम है. सपोज someone wants to prepare civil services, then history, geography, polity, economy, life science में उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए. अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि मैं सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की तैयारी करूंगा. आपका दोनों में सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज फॉर सिविल सर्विसेज यू नीड टू डेवलप नॉलेज इन जनरल स्टडीज. फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज यू नीड टू डेवलप नॉलेज इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स. So you must know what is the structure of the exam. Don't prepare simultaneously for a variety of the exams, because that may lead to the frustration and that may not lead to result. एक्चुअली रिजल्ट जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह आप देखते हैं, न्यूज में पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि मार्च से आए हुए कैंडिडेट इनको क्वालिफाई करते हैं. ऐसा नहीं होता. मैंने भी 3 बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है. मैं खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में था. तो आई हैव गॉन थ्रू दीज एग्जाम्स. एक एवरेज स्टूडेंट इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज अ लेजर लाइक फोकस. आपका फोकस होना बहुत जरूरी है. आपको एकदम एक ही डायरेक्शन में जाकर के पढ़ाई करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट वन is technical based exams. To get selection in these exams, you need to develop a very good knowledge in your engineering branch. So I am going to tell to categorize all those exams जो इस category में आएंगे. The next one is GS based exam, general studies based exam. To get selection in these exams, you need to get developed knowledge in history, geography, polity, economy, life science, current affairs. इन सब चीजों का in-depth knowledge आपको होना चाहिए. Then mathematics and reasoning based exams, and then English and verbal ability based exam. You need to take a very right decision and very right stage of your planning, and that decision is for what kind of exam you are going to focus for 1 year या 2 year या 6 months या 8 months, whatever duration you are going to allot, for what kind of examination you are going to be focused. For example, you are going for technical exam, then forget about all these. But if you are going for this exam, then forget about all these. So you need to define at very early stage कि आप किस तरह के एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं. And then once you have decided that you are going for the technical exam, then prepare for all the exams. Suppose आप electronics engineer हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आईएएस में अपीयर कर रहे हैं या गेट में अपीयर कर रहे हैं. अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो वही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स गेट में भी पूछी जाएगी और आईएएस में भी पूछी जाएगी. सो आई विल एडवाइज दैट इफ यू आर गोइंग फॉर द टेक्निकल सेगमेंट, देन प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जाम्स व्हिच आर रिलेटेड विद द टेक्निकल फील्ड. सिमिलरली अदर फील्ड के लिए भी ये बात सही होगी. सो इन टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, पीएसयूज, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ भी होना चाहिए, लिखना भूल गया हूं, एसएससी, जेई, आरआरबी, मल्टीनेशनल कंपनीज. दीज आर ऑप्शंस अवेलेबल. जनरल स्टडीज में सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एंड डिफेंस ओरिएंटेड. डिफेंस के टेक्निकल वाले इधर चले जाएंगे. देन मैथमेटिक्स में कैट, मैथ, आरबीआई, बैंक, पीओ एंड एसएससी. एसएससी नॉन टेक्निकल यहां रहेगा, टेक्निकल वाला यहां पर आ जाएगा. देन in case of English based exams, GRE, GMAT, IELTS and TOEFL. So these are options available. You need to define कि आपकी skills क्या हैं. इसीलिए सबसे पहली स्लाइड मैंने लेकर के डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि what is your strength. If mathematics is your strength, go for these exams. If English is your strength, go for these exams. If general studies are your strength, go for these exams. And if engineering is your strength, go for these exams. You need to play on your strength
एंड यू नीड टू शार्प दीज थिंग्स। आपको कंपटीशन बीट करना, यू हैव टू बिकम बेस्ट, और बेस्ट तभी आप बन सकते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट हो, जहां पर आप मैक्सिमम फोकस पुट कर सकें, जहां पर आप मैक्सिमम एनर्जी पुट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर द इंजीनियर्स, बिकॉज इसके बगैर इंजीनियरिंग कैरियर रिलेटेड ऑप्शंस का डिस्कशन बेईमानी होगी। So I want to discuss about GATE because it is going to provide lots of opportunities for the graduates, especially engineering graduates. Graduate aptitude test in engineering. This exam is conducted for under Ministry of Education, jointly conducted by ISC Bangalore. ISC Bangalore is the topmost technical institute of our country and 7 old IITs. GATE 2021 को conduct कराने की responsibility IIT बॉम्बे को दी गई है. They have come up with some changes. इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अभी फॉर्म निकला हुआ है, आप भर सकते हैं। उसकी डेट 30 सितंबर तक थी, लेकिन एक्सटेंड करके उन्होंने 7 अक्टूबर तक कर दिया है। तो यू कैन अप्लाई दैट आल्सो, अभी भी भर सकते हैं। इसमें पहले फाइनल ईयर एंड पास आउट कैंडिडेट्स वर एलिजिबल, बट दिस ईयर ऑनवर्ड्स थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड पास आउट, तीनों साल के कैंडिडेट्स इसमें अपीयर कर सकते हैं। थर्ड ईयर के भी, फाइनल ईयर के भी एंड पास आउट के भी। एंड द स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 3 इयर्स, यानी थर्ड ईयर में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई, कोई चिंता की बात नहीं। जब आप पास आउट हो जाएंगे तो फाइनल ईयर में अपीयर करने की जरूरत नहीं। इसी स्कोर कार्ड का यूज करके यू कैन टेक एडमिशन या अदर बेनिफिट्स थ्रू द गेट स्कोर कार्ड। सो दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। जैसे 21 में रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो 21, 22, 23 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। सो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। नो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम परसेंटेज इन बीटेक, नो एज लिमिट, आप अपने बच्चों के साथ भी अपीयर कर सकते हैं। देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट, आल्सो एलिजिबल इफ यू हैव अ बैकलॉग, अगर आपके पास बैकलॉग है तो भी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। Combination of 2 papers. Earlier in GATE you were allowed to appear with only 1 paper. Suppose आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस से अपीयर कर सकते थे, या ईसी के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ ईसी से अपीयर कर सकते थे। But if we'll see the syllabus of the GATE, then some of the papers have common syllabus. लाइक ईसी का और इंस्ट्रूमेंटेशन का 70-80% सिलेबस मैच करता है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का बहुत सारा सिलेबस मैच करता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि दे कम अप विद द आइडिया कि आप 2 पेपर से अपीयर कर सकते हैं। एक तो आपका प्राइमरी, सपोज यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो कंप्यूटर साइंस में अपीयर करें, या फिर एक पेपर और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ईदर यू कैन अपीयर विद 1 पेपर या 2 पेपर, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप 2 पेपर में अपीयर करना चाहते हैं या 1 पेपर में। क्या बेनिफिट होगा 2 पेपर में? 2 पेपर का बेनिफिट ये होगा कि यू आर हैविंग 2 स्कोर कार्ड। तो सपोज एक स्कोर कार्ड में आपकी रैंक कम आई है लेकिन दूसरे में अच्छी रैंक आ गई है, तो जिस भी स्कोर कार्ड में आपकी रैंक अच्छी हो गई उस स्कोर कार्ड को यूज करके यू कैन टेक द बेनिफिट्स। और ये जो एग्जाम्स होंगे वो डिफरेंट दिन में होंगे, जैसे 6, 7, 8 फरवरी को एग्जाम है एंड देन अगले वीक में है। सो टोटल 6 डेज में ये एग्जाम्स हैं, 12, 13, 14 फरवरी को। सो ये जो एग्जाम्स हैं 6 डेज में है, तो इन 6 डेज में आपका एक पेपर एक दिन और दूसरा पेपर दूसरे दिन पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कॉम्बिनेशन भी बना रखा है कि आप सिविल इंजीनियर है तो सिविल के साथ इनमें से कोई एक पेपर लीजिए, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में अपीयर करें, या फिर मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, दोनों में अपीयर कर सकते हैं। ईसी है तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और ईसी लेंगे ही। इलेक्ट्रिकल है तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अपीयर कर सकते हैं। सो यू कैन हैव 2 स्कोर कार्ड साइमल्टेनियसली एंड देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ दिस व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारी, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में ओनली 10,000 स्टूडेंट्स वर अपीयरिंग टिल लास्ट ईयर, जबकि ईसी में 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे थे। तो ऑब्वियसली इन ईसी कंपटीशन वाज वेरी ह्यूज एज कंपेरिजन टू द इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में रैंक अच्छी आने के चांसेस ज्यादा थे देन द ईसी। तो इस तरह से आगे भी हो सकता है एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द गुड स्कोर कार्ड, जो भी आपका बेस्ट स्कोर कार्ड होगा उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम का स्कीम क्या है? इट इज अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब ये कंप्यूटर पर ही होता है, पेन पेपर पर नहीं होता है, एंड ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, लेकिन कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ओवरऑल 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। पहला सेक्शन आपका टेक्निकल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से होता है। 55 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 85 मार्क्स दिया जाता है इन 55 क्वेश्चन को। 72 मार्क्स आर फ्रॉम योर इंजीनियरिंग ब्रांच, कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर साइंस से, ईसी से हो ईसी से, इलेक्ट्रिकल से हो इलेक्ट्रिकल से, लाइक दैट। एंड 13 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज हैविंग हाईएस्ट वेटेज, क्योंकि अभी 72 मार्क्स में 8 to 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो मोस्टली एक सब्जेक्ट को 8 to 9 मार्क्स का वेटेज मिलता है, जबकि मैथमेटिक्स का
हाईएस्ट वेटेज है इस एग्जाम में और श्योर एंड शॉर्ट है। इसी तरह से जनरल एप्टीट्यूड को वेटेज 15 मार्क्स का दिया गया है। सो अगर आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो 28% का वेटेज है एंड 72% में आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। वो गेट का सिलेबस मेडी जी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यू कैन गो फॉर दैट। Next pattern of question. There are three types of questions in this exam. पहला multiple choice question. Multiple choice questions में you will be given 4 options. Out of the 4 options, only 1 option is correct. Remaining 3 options are wrong. So you need to select the correct option. Question 1 मार्क के होंगे या 2 मार्क के होंगे, करेक्ट ऑप्शन चुन लिया तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। बट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग आल्सो। अगर आपने रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए -1/3 एंड 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए -2/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। Then there is another variety of question इस साल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। This is the new variety, multiple select question. Here you will be given 4 options. Out of these 4 options, more than 1 option can be correct. 1 option correct हो सकते हैं, 2 option correct हो सकते हैं, 3 option correct हो सकते हैं। आपका आंसर सही तभी माना जाएगा when you select all the correct option. यानी किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो यू नीड टू सेलेक्ट दोज ऑल 3 ऑप्शंस, देन ओनली योर क्वेश्चन विल बी करेक्ट। अगर आपने कोई 1 या 2 सेलेक्ट किया और 1 छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू। एमएसक्यू में गलत होने पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन थर्ड वन इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। हियर यू विल नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो आपको माउस और कीबोर्ड की मदद से उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस प्लेस पर पुट करना होगा। सपोज आपका आंसर आया 10.8 तो यू नीड टू राइट दैट 10.8 ऑन द गिवन प्लेस। So you are not given any option, your answer is numerical type. That's why the question is known as numerical answer type. Good thing is there is no negative marking for the numerical answer type questions also. So negative marking is only for MCQ, no negative marking for this, no negative marking for this. Next one. Now ये तो था एग्जाम के बारे में। गेट इज जस्ट a scorecard which is going to tell about your performance in engineering, your knowledge in engineering. So very good score या very good rank will give you lots of benefits. वो कौन कौन से benefits हैं वो भी देखना जरूरी है। So पहला benefit गेट स्कोर कार्ड के थ्रू ये है कि you can go for the public sector and government sector jobs. You will face a huge competition. Only top rankers will go for these jobs. और आपको separately apply भी करना पड़ेगा। जैसे ईसी वालों के लिए एक बहुत अच्छी जॉब इस साल उन्होंने जोड़ा हुआ है, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम सुना होगा। आईबी में टेक्निकल ऑफिसर गेट के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं। इसके अलावा ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल, सेल, बीपीसीएल, गेल, एनएलसी, एसपीसीएल, ऑयल, पीजीसीआईएल, एचएल, एनएमडीसी, इनमें से डिफरेंट पीएसयूज डिफरेंट ईयर में रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सारे इस साल करेंगे, इनमें से कुछ इस साल करते, कुछ अगले साल करते हैं, लाइक दैट। सो दीज कीप ऑन डूइंग द रिक्रूटमेंट थ्रू गेट स्कोर कार्ड। नेक्स्ट वन, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब। यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ डीआरडीओ एंड बीएआरसी on the basis of performance in GATE scorecard. Then next one, you can go for higher studies, MTech program या MS program के लिए ISC या IIT या ट्रिपल IT से आप जा सकते हैं। Then you can go for the research oriented dual degree program, MTech plus PhD के लिए IITs में भी जा सकते हैं, ISC में जा सकते हैं या CSIR में जा सकते हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दैट इज द प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। सो वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए आपको इनवाइट करते हैं थ्रू गेट स्कोर कार्ड, और वहां पर 32,000 पर मंथ, आई होप एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सो 30 से 35,000 के बीच की स्कॉलरशिप पर मंथ प्रोवाइड करते हैं। सो आप उस डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज आउट ऑफ इंडिया। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, they call you, like NTU Singapore, NUS Singapore, TU Munich and RWTH. Then you can go for the MBA programs through GATE scorecard. ये निटी मुंबई एक MBA मैनेजमेंट का कॉलेज है, बिजनेस स्कूल है, मुंबई में है, and they call engineers for the MBA programs in 3 different courses: PGDI, post graduate diploma in industrial engineering, PGDM, post graduate diploma in management, and PGDMM, post graduate diploma in manufacturing management. इन तीनों में से किसी कोर्स के लिए आप गेट में परफॉर्मेंस के बेसिस पर जा सकते हैं। देन देयर विल बी इंटरव्यू आल्सो, ऑब्वियसली GDPI इंटरव्यू, ये सब तो होगा ही। तो रिटन की जगह पर गेट का स्कोर कार्ड हो जाएगा, देन इंटरव्यू। The best thing about this college is it is having 100% placement record from last so many years. इसका 100% placement record है। दूसरी चीज, placement is very good. इसमें जो टॉप प्लेसमेंट है वो 50 से 60 लाख के रेंज में रहता है।
टॉप 10% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट पिछले 5 साल में आप देखेंगे हमेशा 30 लाख प्लस का है। एवरेज प्लेसमेंट 20 से 25 लाख की रेंज में आएगा, समटाइम्स 27 लाख की रेंज में भी आता है, एंड लोवेस्ट प्लेसमेंट जो है वो 11 टू 12 लाख की रेंज में आता है। सो इट इज वेरी गुड, एंड द बेस्ट थिंग इज इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस स्कूल इसकी फीस भी बहुत कम है। 2 साल की जो IIM की फीस है उसके कंपैरिजन में इसकी फीस बहुत कम होती है, और मोर ओवर आप देखेंगे तो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो में एवरेज पैकेज मिलता जुलता है इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस स्कूल्स आल्सो। सो ये गेट के थ्रू बेनिफिट्स थे। अब ये तो था इंफॉर्मेशन का पार्ट। नाउ आई वुड लाइक टू टेक 5 मिनट्स मोर या 3 to 4 minutes more. I want to tell some important things related with the competitive examination. I started my journey from a private college, and till school I was very good student, but I belong from a village and from a very humble background, so was not having much knowledge about these engineering competitions, etc. So landed up in a private college, and my college life was almost wasted. I was not doing anything good in the college, कोई अच्छी studies नहीं वगैरह. But in final year, I become a little bit aware and did a sincere effort, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब में भी गया, तमाम सारी जॉब में गया, एंड देन लौट करके फिर यहाँ पर अपना करियर, एक अच्छा करियर बना लिया. So during this journey, I have faced with lots of failures and get lots of success also. So when I analyze that journey, I have withdrawn some conclusions. So I'm going to share those conclusions with you. What are the key points which one need to keep in mind before starting his preparation for the competitive examinations? दूसरी चीज, from last 10 years I am in this industry. मैं DG के साथ associated हूँ पिछले 10 साल से, and I'm teaching every year 40-50,000 students, interacting with the 40-50,000 students of this country. So there is a huge experience उनके अनुभव, उन students के अनुभव. So उसके हिसाब से I would like to discuss. मैं एक आपके लिए सक्सेस ट्री बनाना चाहता हूं. इसी ट्री की छांव में और इसी ट्री से मिलने वाले फ्रूट से आपकी पूरी जिंदगी चलने वाली है. सो ये करियर सक्सेस ट्री है. सो व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्लांट दिस ट्री दैट आई वांट टू डिस्कस इन दिस स्लाइड. सो पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए, दैट इज यू नीड इंट्रोस्पेक्शन. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए कि what is your strength and what is your weakness. Never go for that career option जहां पर आप वीक हो, चाहे जितना फैमिली मेंबर्स कहें, चाहे जितना फ्रेंड्स सजेस्ट करें. Always try to play on your strength. Only go for those options where you are best. Then only you can do justice with your career. So पहले इंट्रोस्पेक्शन करिए. इंट्रोस्पेक्शन के बाद set your goal. Decide करिए कि what is your target exam या where do you want to make your career. आफ्टर ग्रेजुएशन आप कहां जाना चाहते हैं, 1 year, 2 year, 3 year, जो भी आपकी प्लानिंग का टाइम है, where do you want to invest your time, energy and money. Decide your goal. Second, if you have decided your goal, if you are going to prepare for a particular exam, then select the source of study. You need to select the best source of study. You cannot study every book. Suppose you are preparing for GATE examination. There are 10 subjects. If you study in every subject, hundreds of books are available. Can you study 10,000 books, 1,000 books, 100 books for an exam? No. So try to select one best book of each subject. अब वो बेस्ट कैसे होगी? वो बेस्ट ऐसे होगी कि जो पूरा सिलेबस कवर कर रही हो उस पर्टिकुलर एग्जाम का, जिसमें न्यूमेरिकल भी हो, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो. All those things will be included and that should be up to dated. वो ऐसा ना हो कि 1970 की लिखी हुई बुक हो और अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. सो दैट शुड बी इन सिंक्रोनिज्म विद द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम. सो ट्राई टू सेलेक्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टडी. देन नेक्स्ट, या आप किसी इंस्टीट्यूट का गाइडेंस भी ले सकते हैं. हालांकि मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं कहने में कि आप सेल्फ स्टडी से भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट की मदद से भी कर सकते हैं. सेल्फ स्टडी से आपको करना है तो यू नीड टू डिफाइन बाउंड्री कि आपको क्या पढ़ना है, और इंस्टीट्यूट की मदद से करना है तो इंस्टीट्यूट वो सारी चीजें आपको पढ़ा देगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा. तो इंस्टीट्यूट की मदद लेंगे तो आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, और अगर सेल्फ स्टडी से जा रहे हैं तो यू नीड टू पुट अ लिटिल बिट मोर एफर्ट. बाकी दोनों तरह से एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं लोग. कवर होल सिलेबस बट इंटेलिजेंटली. डिवाइड द सिलेबस इन 3 पार्ट्स. आप किसी भी नेशनल लेवल के कंपटीशन को एनालाइज करिए.
There are certain subjects of which are having limited syllabus, but they are having very good weightage in the exam. For example, mathematics. To cover the syllabus of mathematics of GATE exam, you need to study 40 to 50 hours, but the weightage is 13 marks. जबकि वहीं पर इंजीनियरिंग के कई सारे सब्जेक्ट देखेंगे कि you need to study 100 hours, but the weightage is only 8 marks. So try to select these kind of subjects. आप पहले ऐसे सब्जेक्ट चुने जिनका वेटेज एग्जाम में अच्छा हो और पढ़ने में कम समय लगे. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन ट्राई टू सेलेक्ट दो सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज है एग्जाम में बट दे आर लेंथी. दे आर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड देन द थर्ड वन, द लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है जिनका वेटेज एग्जाम में कम है एंड दे आर हैविंग एम्बिगुअस क्वेश्चंस या अनसर्टेनिटी है कि 1 साल पूछे जाते हैं, 5 साल नहीं पूछे जाते हैं. सो उनको थर्ड में रखिए. टॉप प्रायोरिटी आप पहले वाले को दीजिए, देन सेकंड वाले को, एंड देन एट द एंड आप पढ़िए कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है. एलोकेट योर टाइम ऑफ स्टडी आल्सो. Maximum time for most important, then the second one, and the minimum time for the least important. But don't skip any subject, क्योंकि हो सकता है कि किसी साल एग्जाम में वही सब्जेक्ट ज्यादा पूछ ली जाए जो आप छोड़ करके गए हैं. So try to cover whole syllabus, but intelligently divide the syllabus in 3 parts and accordingly allocate time. Develop a study plan. आप क्या करिए कि सपोज 1 ईयर आपको पढ़ना है, 1 ईयर में 10 सब्जेक्ट्स हैं, 2 मंथ आपने रिवीजन के लिए दे दिया, 10 मंथ है. सो सब्जेक्ट को कितने दिन देना है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा कम समय दे सकते हैं. तो एलोकेट टाइम सब्जेक्ट वाइज एंड देन एवरी डे आप ऐसे पढ़िए कि उस सब्जेक्ट वाइज प्लान को आप फुलफिल कर सके. सपोज आपने किसी सब्जेक्ट को 20 डेज दिया, सो एवरी डे यू नीड टू स्टडी दैट मच ऑफ आवर्स सो दैट यू कैन कंप्लीट योर टारगेट विद इन 20 डेज. सो आपके प्लान के 2 सेगमेंट होने चाहिए. पहले सब्जेक्ट वाइज प्लान होना चाहिए और दूसरा आपका प्लान होना चाहिए डेली. तो सब्जेक्ट वाइज प्लान को पूरा करने के लिए आपका डेली प्लान होना चाहिए. कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आईएएस क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है. This is a ridiculous question. You need to study the whole syllabus, so it will depend upon individual's capacity. कोई किसी सब्जेक्ट को 5 दिन में खत्म कर लेगा और कोई उसी सब्जेक्ट को 10 दिन में खत्म करेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी या योर प्रीवियस स्टडीज या आपका नॉलेज क्या है या आपकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, आपका लर्निंग कर्व क्या है, उस पर डिपेंड करेगा. सो यू डिफाइन द टारगेट कि 1 साल में पढ़ना है और उस 1 साल में एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया गया. अब एवरीडे आपको उतना पढ़ना है ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर सके. नेक्स्ट वन, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक. कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पूरी सब्जेक्ट को खत्म करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके टेस्ट में अपीयर करके अपना परफॉर्मेंस चेक करिए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल दूसरी पढ़ लिया, तीसरी पढ़ लिया. अनऑर्गेनाइज्ड मत पढ़िए, क्योंकि इफ यू आर अनऑर्गेनाइज्ड, जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतना ज्यादा लॉसेज होते हैं. ठीक है, और जितना ज्यादा लॉसेज होते हैं उतनी इफिशियंसी कम होती है. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. सो यू नीड टू बी वेरी इफिशिएंट, और आप इफिशिएंट तभी हो सकते हैं जब आप सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे. सो ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड. इवन यू नीड टू मेक योर रूम वेरी सिस्टमैटिक. जो स्टडी रूम है उसकी एंट्रोपी मिनिमम रखिए, चीजों को बड़ा सिस्टमैटिक वे में रखिए, लर्निंग एनवायरनमेंट से खुद को सराउंड करने का प्रयास करिए. नेक्स्ट वन, स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन. 1 hour of study of full concentration is far better than the 4 hours of study without any concentration. Mobile is going to be the biggest enemy and it is going to be the best friend. It depends upon how you are going to use this. So suppose you are using social media sites and here and there activities, you are talking with any person for 6 hours, then mobile is your enemy. But if you are using mobile according to your need, कि मुझे मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, then this is the best resource. और आप इसको इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो. सो मोबाइल जब भी आप पढ़ रहे हैं तो स्विच ऑफ करके रखिए, अपने लिए स्क्रीन टाइम की लिमिट बांधिए. आप देखिए, आप अपना स्क्रीन टाइम का एवरेज निकालिए. मुझे लगता है 5-6 घंटे का एवरेज सबका आ रहा होगा. एंड यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम. जबकि आप देखें तो 5 hours you are wasting on mobile. So if that 5 hours you accumulate, then it is 150 hours in a month, and 150 hours in a month, it is going to be almost 18 hours in a year. And किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस 1000 hour या 1200 hours से ज्यादा नहीं होता है. So you are wasting a lots of time. That's why you are complaining you don't have time. You have sufficient time. You need to be very systematic and organized. So आप organized होकर के full concentration के साथ पढ़िए. Make your own notes. Notes are going to play very crucial role in your selection.
1000 पेज की बुक को आप लास्ट मंथ रिवाइज नहीं कर सकते. सो यू नीड टू पुट इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. व्हेन यू आर पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, सो आप पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, बुलेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, कलर कोडिंग कर लीजिए. सो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए जिसमें इंफॉर्मेशन सारी रहे लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी या बल्कि ना हो, ताकि एट द लास्ट मोमेंट यू कैन रिवाइज इट. देयर शुड बी वैल्यू एडिशन प्रोविजन कि आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो एक या दो पेज छोड़ करके एंड देन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करिए. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की या टेस्ट सीरीज में अपीयर करेंगे, इफ यू गेट एनी न्यू कांसेप्ट रिलेटेड विद दैट चैप्टर यू कैन ऐड दैट कांसेप्ट. सो एक ही नोट्स में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, आपको वेरियस प्लेसेस पर चीजों को पुट करने की जरूरत नहीं होगी. सो ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ वेरी गुड नोट या एफिशिएंट नोट्स बनाने का प्रयास करिए. बिल्ड अ सपोर्ट ग्रुप. देयर मस्ट बी अ फ्रेंड सर्कल ऑफ 3-4 फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर लीजिए. इमोशनली कनेक्ट होना दैट इज अनदर थिंग कि किसी के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में ट्राई टू डेवलप अ फ्रेंड सर्कल वेयर पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन, या जिनका टारगेट सेम है या जिनका टारगेट जॉब सेम है. तो इससे क्या होगा कि यू विल कीप ऑन डिस्कसिंग विद ईच अदर, यू विल कीप ऑन ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस, यू विल कीप ऑन फाइंडिंग द लूप होल्स इन योर प्रिपरेशन. तो एक सपोर्ट ग्रुप भी डेवलप करिए. मेक फ्रेंड्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड. कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता. तो व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन योर ग्रुप, ट्राई टू टेक द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड, ट्राई टू अवॉइड ऑल द नेगेटिव थिंग्स. किसी भी दोस्त की जो नेगेटिविटीज हैं उसको घर पे लेकर जाने की जरूरत नहीं. आप किसी मार्केट में जाते हैं, इन द मार्केट देयर आर टू काइंड ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल, वन वेरी फ्रेश एंड अनदर जो थोड़ा सड़ी गली टाइप की होती है. Which one you will buy? That fresh one. और कौन सी छोड़ के मार्केट में चले आएंगे? जो सड़ी गली होंगी. सो इसी तरह से इन एवरी पर्सन यू विल फाइंड सम गुड क्वालिटीज, द फ्रेश वेजिटेबल, एंड यू विल फाइंड सम बैड क्वालिटीज, दो सड़ी गली वेजिटेबल्स. सो व्हिच वन यू नीड टू टेक? दैट फ्रेश वेजिटेबल. क्योंकि अगर वो सड़ी गली सब्जी आपने खा लिया तो आप बीमार हो जाएंगे. सो ट्राई टू डोंट टेक द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द फ्रेंड, ट्राई टू टेक ऑलवेज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स. रेगुलर रिवीजन होना कंपलसरी. वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन अ वीक, give a 1 day time for that revision. Whatever you are studying in 1 month, try to give 1 or 2 days for the revision. So there must be a regular revision, cyclic revision. आपने बचपन से सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान. बार बार पढ़ने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है. So try to incorporate this in your study. आप अपनी आदत में इसको डेवलप करने का भी प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा आपकी क्लियर होगी. सो रेगुलर रिवीजन करिए. इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस. In competitive examinations you need to get the maximum marks. आपको 90 मार्क्स नहीं चाहिए, बेस्ट रैंक चाहिए. रैंक कैसे बेस्ट आएगी? हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट है तो 50 मार्क्स पे भी रैंक अच्छी आ गई और पेपर इजी है तो 80 मार्क्स पे भी नहीं है. आप देखिए यूपीएससी में 41% पर सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस में 50% के आसपास टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, जबकि सीबीएसई का रिजल्ट जो 12th का आता 99%, आजकल तो 100% भी मार्क्स लोगों के आने लगे हैं. सो हियर यू नीड टू गेट द बेस्ट. और बेस्ट कैसे आएगा? जब आप एक लार्जर पूल में अपने आप को पुट करके और एनालाइज करेंगे कि आप कहां खड़े हो रहे हैं. तो कई एक नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो. वो टेस्ट इजी है या डिफिकल्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि कितने ज्यादा स्टूडेंट उस टेस्ट में अपीयर कर रहे हैं. सो देयर यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि आप कहां पर खड़े हो रहे हैं. सो आप हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करिए, किसी टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए. ऑलवेज थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर. सक्सेस का मतलब क्या होता है कि लोग मेरे बारे में कहें कि मैंने ये अचीव कर लिया है. लोग मेरी सक्सेस का लोहा तभी मानेंगे जब मैं पहले खुद मानूं कि मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं. सो यू नीड टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर. यू नीड टू डेवलप अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे. आपने अगर कभी श्री रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी. यानी जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से आपको मूरत में भगवान दिखाई देते हैं. But I'm wanting to take conclusion from this line कि the way you think, in same way things start to happen in your life. So everything which happens in your life, that is just a reflection of your thinking process. So if you think in a positive manner, positive things will happen in your life. And if you think in a negative manner, then negative things will start to happen in your life. So surround yourself with a positive thought. ये चीज 500 साल पहले तुलसीदास ने लिखी थी. उसको पॉल कोलियो अपनी बुक अल्केमिस्ट में लिखता है कि व्हेन यू डिजायर समथिंग यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स फॉर इट. जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने का प्रयास करने लगती है. तो ये वही चीज है कि जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से आपके जीवन में. एक्चुअली उसका एक सीधा साधा रिजल्ट है कि जिस तरह से आप सोचते हैं, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है,
उसी की तरह से आपके एक्शंस होते हैं और उन्हीं एक्शंस का आउटकम आपकी जिंदगी में सक्सेस या फेलियर के तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. सो इफ योर थॉट्स आर पॉजिटिव, योर एक्शंस विल बी पॉजिटिव एंड द आउटकम्स विल बी पॉजिटिव. इफ योर थॉट्स आर नेगेटिव, योर एक्शंस विल बी नेगेटिव एंड द आउटकम विल बी फेलियर. सो इट ऑल डिपेंड्स कि सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द थिंकिंग प्रोसेस. सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए आपको कि आप ये चीज कर सकते हैं, और वो थिंकिंग प्रोसेस से ही डेवलप होकर के आएगा. वर्क हार्ड एंड डोंट गिव अप. There is no substitute of hard work. You can see कि जितनी भी दुनिया में लोग सक्सेसफुल हुए होंगे, every single successful person में एक कॉमन क्वालिटी मिलेगी कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. 10 hours, 12 hours, 14 hours. They put the sincere effort. So there is no shortcut. चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, चाहे जितनी चीजें आ जाएगी, स्मार्ट वर्क तो इंटीग्रेट करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हार्ड वर्क भी करना है आपको. तो हार्ड वर्क से कभी नहीं बचना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रखना है. कंसीडर फेलियर एज नेक्स्ट स्टेप. जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि विल फेल. जैसे बच्चा बचपन में चलना स्टार्ट करता है तो गिर जाता है, तो क्या एक बार गिर गया तो उसे चलना ही छोड़ देना चाहिए? अगर उसने चलना छोड़ दिया तो फिर जीवन भर वो अपाहिज रहेगा, चल नहीं पाएगा. लेकिन अगर वो गिरा और फिर उठ करके स्टार्ट किया, फिर गिरा, फिर उठ करके स्टार्ट किया, तो एक दिन चलना सीख जाएगा. सो गिरना बुरी बात नहीं है, गिर करके गिव अप कर देना, दैट इज द वर्स्ट थिंग. गिर करके उठ करके और फिर से स्टार्ट करना, दैट इज द बेस्ट थिंग. द फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी. इट इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस. अगर आप फेल होकर के रुक जा रहे हैं, इट मीन्स यू विल नेवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ. बट अगर फेल होकर के और फिर से दौड़ जा रहे हैं, वन डे डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट. वन डे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. और ये पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो लोग फेल होने के बाद दोबारा स्टार्ट किए हैं, दे क्रिएटेड हिस्ट्री. सो फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट. डोंट बी ड्रेडफुल फ्रॉम द फेलियर, embrace द फेलियर. इसको अपने जीवन में अपनाइए, इसको गले लगाइए, और जो पीछे गलतियां हुई हैं उनसे सीखिए. असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है. सो ट्राई टू पुट द सिंसियर एफर्ट. और ज्यादा मन से चीजों को करने का प्रयास करिए, आपको दोबारा सफलता मिलेगी. सो दीज आर द 14 इंग्रेडिएंट्स सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड. वैसे तो मैंने स्टडीज के लिए आपको बताया है, लेकिन इनको आप अपनी जनरल लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट सक्सेस. और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. मैं एक रिक्शा पुलर के घर में पैदा हुआ हूं, और वहां से यहां तक की जो मेरी जर्नी हुई है, उनमें इन पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो इफ यू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन योर डे टू डे लाइफ, then obviously you will get a successful life. You will get something better, something bigger in your life. जो कुछ बातें ध्यान रखना है कि don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Most of the people in this country fail because they develop a fear. कि अगर जैसे सपोज आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के मन बनाओगे, तुरंत कोई आकर के कहेगा अरे बहुत कंपटीशन होता है, आपके मन में एक फियर डेवलप हो जाएगा कि मैं फेल हो गया तो क्या हुआ. इस फियर को किल करिए. आप ऐसे सोचिए कि जिस दिन मैं टॉप करूंगा उस दिन क्या होगा. सो जो जीत का उत्साह है वो फेल होने के डर से बड़ा होना चाहिए. सो ऑलवेज द फियर ऑफ लूजिंग के कंपैरिजन में एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग ग्रेटर होगा. अगर एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग आपका ग्रेटर होगा, then that will force you to do the hard work. और अगर उसने आपको हार्ड वर्क करने के लिए तैयार कर दिया, you will definitely get success. वर्क क्या है? एनर्जी, ठीक है. और एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another form. So if you use energy in a positive mind frame के साथ, positive thought के साथ, you will make electricity and enlighten the whole city of life. और अगर आप उसको नेगेटिव माइंड फ्रेम के साथ यूज कर रहे हैं, तो यू विल मेक अ बॉम्ब एंड यू विल डिस्ट्रॉय दैट सिटी ऑफ लाइफ. So it all depends upon you कि in what mind frame you are going to use that energy. Use always that energy in a positive mind frame to enlighten your city of life. That is the basic thing. And you need to keep in mind that basic science basically that applies in life also. ये मैंने कहा है कि फेलियर के बाद ट्राई करें, फिर ट्राई करें, फिर फेल हो, फिर ट्राई करें, तब तक करते रहें जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं. इस बात का ध्यान रखिए. सेकंड बिग इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान रखना है कि द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस. आपने जो भी टारगेट डिसाइड कर दिया है उसके लिए एकदम फोकस्ड होकर के उस टारगेट पर काम करिए, तब तक जब तक आपको आपकी सफलता ना मिल जाए. द वन हु राइजेस आफ्टर अ फॉल इज ग्रेट. So change your mind to get something better, something bigger in your life. Change your mind at least not to compromise on less than what you deserve. Change your mind to think in a positive manner. Change your mind
to make your career in the best possible direction. Change your mind to put sincere and hard work to plan your career. During this planning, during this journey, if you need any kind of help from Mediji, you can log in www.mediji.in और आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि इन व्हाट मैनर ऑनलाइन या ऑफलाइन या क्लासरूम या किस तरह से मेडीजी आपकी मदद कर सकता है. एंड द सेकंड वन, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है सुनील कुमार तिवारी के नाम से, या मैं आजकल इस पे बड़ा एक्टिव रहता हूँ. टेलीग्राम एक नया प्रोफाइल स्टार्ट हुआ तो इस पर मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस पे जुड़ करके आप मेरी कोई भी मदद ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. So this was I was wanting to share you. थोड़ा सेशन लेंदी हो गया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मुझे लगभग 1 घंटे बताया गया था, लेकिन 1 घंटे 10 मिनट के आसपास मैंने शायद टाइम ले लिया है. सो फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. Now if you have any question, then I am ready to take all those questions. So questions please. What's the difference between getting a PSC through GATE or getting a good college for MTech through GATE? What is the difference दोनों के बीच में? Someone is asking what is the difference between a PSU through GATE and between getting a good college through GATE. Basic difference ये है कि PSU में जब आप जा रहे हैं तो that is a job. You will start immediately earning. ठीक, suppose ONGC में you will get recruitment through GATE scorecard, then you will start getting earning from that day onwards. लेकिन अगर आप IIT दिल्ली में एमटेक करने जा रहे हैं, सो 2 years का एमटेक प्रोग्राम है, एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम यू विल गो फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट या किसी अन्य जॉब के लिए जाएंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि बीटेक के बाद इमीडिएटली आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, देन गो फॉर द PSUs थ्रू गेट. एंड अगर बीटेक के बाद आप हायर क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, देन गो फॉर द जॉब. देखो, हायर क्वालिफिकेशंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको 1 week बिफोर का एग्जाम्पल लिख देता हूं. एक मेरा स्टूडेंट था, ही वाज वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पैकेज ऑफ 8-9 लाख रुपीज आफ्टर बीटेक. तो वो पैकेज छोड़ करके आया हुआ था, एंड ही वाज डूइंग एमटेक फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज. मैं कॉलेज वालेज का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फेसबुक पर शेयर किया हूं, आप लोग परेशान करना स्टार्ट करेंगे. सो ही वाज डूइंग एमटेक फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज. He got a package of 24 lakh after MTech. अब 8 लाख के पैकेज का व्यक्ति कितना भी मेहनत कर लेता, 2 साल में उसका पैकेज 24 लाख नहीं होने वाला है. बट यहां बिगनिंग ही 24 लाख से हुई. सो व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू कि इफ यू गेट अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज एंड योर फैमिली एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस परमिट यू, देन गो फॉर द हायर स्टडी. But if your family and financial situations are not permitting you, immediate earning is compulsory, then go for the earning. Next question, please. Apurva asked, as a third year student, should I try GATE in 2021? Can you repeat, please? As a third year student, should I try out GATE in 2021? Okay. As a third year student, should I try out to GATE 2021? Yes, you should try. There are 4 months almost remaining, and you can give your best. थर्ड ईयर स्टूडेंट को अभी फॉर्म अप्लाई करिए, एंड 120 days नियर अबाउट लेफ्ट नाउ ऑनवर्ड्स. सो इन 120 days द सिलेबस फॉर द गेट एग्जामिनेशन, व्हिच ब्रांच कैन यू टेल मी? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. Let us suppose you are EC student या computer science student, I am assuming, then roughly 600 hours का syllabus है. So if you put sincere effort, तो नहीं भी पूरा syllabus आप पढ़ पाएंगे, तो भी 80% 70% syllabus you can study and you can appear with that much syllabus इस साल के गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि गेट फरवरी में होगा और अभी सफिशिएंट टाइम है प्रिपेयर करने के लिए. तो मेरे हिसाब से जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन वर्स्ट पॉसिबल केस की अगर आप नहीं भी बहुत अच्छा पढ़ पाए तो सिर्फ 1500 रुपए का नुकसान होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं. और अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा एफर्ट पुट कर लिया तो एक अच्छा स्कोर कार्ड आ जाएगा. तो फाइनल ईयर में आपको हो सकता ना अपीयर करना पड़े, या अपीयर भी करना पड़े तो डबल कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर करेंगे. तो इन माय ओपिनियन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स मस्ट ट्राई, अभी सफिशिएंट टाइम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shivangi asked, what is the difference between preparation for GRE and GATE?
Both are totally different. In GRE, your verbal ability will be judged, so you need to develop a very sound knowledge of the English grammar and verbal ability related things, as well as general aptitude. जबकि इन केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन द पैटर्न इज टोटली डिफरेंट. इन केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन यू नीड टू डेवलप साउंड नॉलेज इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स. आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए. इंग्लिश आती है या नहीं आती है इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जैसा मैंने कैटेगराइज किया था कि अगर टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट है देन गो फॉर द गेट एग्जामिनेशन, एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश या वर्बल एबिलिटी रिलेटेड थिंग्स में देन गो फॉर GRE and GMAT. Shruti Next. asked, can we go for ISRO and space research after GATE? ISRO and space research after GATE. Yes, you can. Although there is one thing, ISRO conduct their own exam, separate exam every year. DRDO and BARC recruit through GATE, but ISRO conducts their own exam. Syllabus of ISRO exam and GATE exam both is same, but you need to appear in ISRO paper separately. So GATE का स्कोर कार्ड आपको ISRO के लिए, स्पेशली ISRO के लिए कोई मदद नहीं करेगा. बट देयर इज वन इंस्टीट्यूट जो ISRO का स्पेस इंस्टीट्यूट है. वो इंस्टीट्यूट में अगर आप एरो स्पेस इंजीनियरिंग वगैरह में काम करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, बेसिकली काम नहीं तो एमटेक करना चाहते हैं, तो फिर गेट के थ्रू जाना पड़ेगा. मैं इसको लिख देता हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है. इसको ऐसे समझिए कि ISRO में दो चीजें हैं. पहला है कि ISRO जाने के लिए जॉब के लिए, तो अगर आप ISRO में जॉब के लिए जा रहे हैं, दिस ISRO 2 wings, जॉब आफ्टर बीटेक, तो ये एक सेपरेट एग्जाम होगा. हर साल होता है ये एग्जाम, separate exam. You need to appear in that exam. Syllabus of this exam is exactly same as the syllabus of GATE examination. Almost question भी same level के होते हैं. GATE से थोड़ा easy होते हैं question. दूसरा, एमटेक करना. ISRO का एक इंस्टीट्यूट है, उसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा. इंडियन स्पेस इंस्टीट्यूट करके है. तो अगर यहां पर आप एमटेक करना चाह रहे हैं ISRO से, तो गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा. एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यू कैन डू एमटेक फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. सो ये तरीका है. एनी अदर क्वेश्चन? What kind of job we can apply after GATE? What kind of? What kind of job we can apply after GATE? I have told about all the kind of jobs. You can go for the research oriented jobs, you can go for the government jobs like PSUs, you can go for higher studies. So all those jobs I discussed, you can go for these jobs. These jobs are basically techno management jobs, technical plus management nature की jobs हैं. अगर आपको administrative job चाहिए या प्योर मैनेजमेंट की जॉब चाहिए, तो फिर उसके लिए या तो कैट का सहारा लीजिए या फिर आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं, IAS में जा सकते हैं. नेक्स्ट. Kathleen asked, while applying for studies abroad, should we give GRE if it's not mentioned in the requirements of the master's program? Does it improve the chances of selection? हाँ बताओ. While applying for studies abroad, should we give GRE if it is not mentioned in the requirements of the master program? Does it improve chance of selection? Obviously, if there are two ways to go for the master's program abroad. One, through GRE. In fact, 3 ways. Some of the countries directly recruit. So if direct आप जा रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको किसी भी तरह के एग्जाम में अपीयर करने के लिए. देन सेकंड इज GRE या GMAT के थ्रू, एंड थर्ड जैसा मैंने बताया गेट के थ्रू. ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि व्हिच पाथ यू आर गोइंग. अगर आप किसी के रिकमेंडेशन, किसी प्रोफेसर वगैरह के रिकमेंडेशन के थ्रू जा रहे हैं, then you need not to appear in any of these programs. You just need to qualify a English language test, चाहे वो IELTS या TOEFL, वो तो हमेशा करना पड़ेगा क्योंकि mode of the instruction is English and you need to qualify that language test. कुछ कंट्रीज IELTS मांगती हैं, कुछ कंट्रीज TOEFL मांगती हैं, तो वो तो मैंडेटरी पार्ट है ही. लेकिन बाकी जो दूसरा स्कोर कार्ड है वो GRE या GMAT चाहिए. अगर किसी प्रोफेसर से आपके संपर्क अच्छे हैं या आपके किसी काम से कोई प्रोफेसर इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी बुला सकता है. देन यू नीड नॉट टू अपीयर इन दिस
जीआरई या जीमैट किसी में भी आपको अपीयर करने की जरूरत नहीं। बट अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और जीआरई का एक अच्छा स्कोर कार्ड है या गेट का अच्छा स्कोर कार्ड है, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसीजर वो आपको मदद कर देता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, एंड दैट पॉजिटिव इंपैक्ट में गिव यू 10% 5% मार्क्स एक्स्ट्रा। तो अगर कोई भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन आपने क्रैक किया है, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट, बट दैट कैन नॉट बी मैंडेटरी या एसेंशियल क्राइटेरिया। नेक्स्ट, How do you figure out your strength? How do you figure out your strength? How do you figure out your strength? how to figure out your strength? You are the best judge for that. No one else can tell you about what is your strong point. I cannot tell you, but if for example you talk about me, then from 1-2 exams I try to figure out what is my strength and what is my weakness. Suppose you appear in any test series, या आप किसी भी एग्जाम का एक पिछले साल का पेपर उठा लीजिए एंड ट्राई टू सी दैट पेपर। उस पेपर में आप देखिए कि आपको किस तरह की चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज का पेपर उठाइए और आपको 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट फिट फॉर द सिविल सर्विसेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन सही या गलत कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उन चीजों को समझ पा रहे हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी। सो दैट इज द स्ट्रांग पॉइंट कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो गो फॉर दैट एग्जाम। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत वीक पॉइंट है आपका जनरल स्टडीज, डोंट गो फॉर दैट। इसी तरह से आप जीआरई जीमैट उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू माय केस, आई वाज नॉट वेरी गुड इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन। तो मैं जब भी जीआरई बैरेंस की एक बुक आती है, तो जब भी उसको उठा करके देखता था तो आई स्टार्टेड टू गेट इरिटेट। मुझे अच्छा नहीं लगता था, या 1 घंटे में या आधा घंटे में मैं बोर हो जाता था। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आ गया कि ये मुझसे नहीं होने वाला है, लीव इट। But when I started to study the engineering subjects, maths पढ़ना, technical subjects पढ़ना, तो वो चाहे मुझे समझ में कम भी आती थी, but I keep on developing interest in that subject, तो मैं लंबे समय तक उसको पढ़ सकता था। तो मुझसे इस तरह से मैंने फिगर आउट किया कि इंजीनियरिंग में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, एंड दैट इज माय स्ट्रांग पॉइंट प्रोबेबली, और इधर मुझे कम मजा आ रहा है, सो दैट इज प्रोबेबली माय वीक पॉइंट। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं कि आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट, क्या वीक पॉइंट है। कुछ जनरल चीजें तो डे टू डे एक्टिविटी में ही ऑब्जर्व हो जाएगा कि शाम को आप 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, दैट इज योर वीकनेस। आप 1 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं पाते, दैट इज योर वीकनेस। सो कुछ जनरल पॉइंट तो ये है। सब्जेक्ट डिसाइड करने के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में कुछ पेपर वगैरह जो अवेलेबल है उनको खरीदना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, एंड वहां से जज करना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? Nandini asks, does PSU only accept score of current year? Does PSU only accept score of current year? Yes, it is very good question, and probably I skipped that question. For MTech program, PhD programs and MBA programs, score card is valid for 3 years. But for PSU, score card is valid for only 1 year. So if you want to appear in PSU interviews, then current year score card is compulsory. Suppose 2021 में PSU recruitment है तो उसी साल का स्कोर कार्ड चाहिए, 22 में रिक्रूटमेंट है तो उसी साल का स्कोर कार्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम भी है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कई बार 1 साल पीछे का स्कोर कार्ड ले लेते हैं कि 22 का रिक्रूटमेंट है और ये 21 के स्कोर कार्ड पर रिक्रूट कर रहे हैं। सो लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है, मैंने 2 ही देखे हैं। एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी देखा था, हालांकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब चेंज कर दिया, आप करंट ईयर का लेने लगे हैं, और एक बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन था, उसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आया। बट मोस्ट ऑफ द पीएसयू जो होते हैं वो करंट ईयर का स्कोर कार्ड ही वैलिड मानते हैं। नेक्स्ट, Divya asks, will it be possible for me to give the exam for GATE and CSC branch if I am from ECE branch? Will it be possible for me to give exam for GATE in CSC branch? yes, you can appear in any of these papers, no matter कि आप किस ब्रांच से हैं। ठीक है, आप देखें 3 years बैक कंप्यूटर साइंस रैंक 1 वाज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बीटेक उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में रैंक 1 लेकर के आया था। सो इट हार्डली मैटर्स कि वेदर यू हैव डन योर बीटेक इन सिविल या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, ये जितने भी पेपर्स हैं उनमें से कोई एक पेपर लेकर के आप अपीयर कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं, यू कैन अपीयर इन कंप्यूटर साइंस आल्सो, देयर इज नो हार्म इन इट। और आजकल लोग कर रहे हैं,
मेरे पास हर साल 10-15 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो करते हैं, उसका पीछे एक हिडन पर्पज है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स गेट वेरी लुक्रेटिव पैकेज। एमटेक के बाद जो सबसे बेस्ट पैकेज और सबसे हाईएस्ट पैकेज आईआईटीज में है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स का है। तो कई बार उस पैकेज की लालच में स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से एमटेक करते हैं। तो अगर आप कर सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, उसका सिलेबस देख लो, तो आप कंप्यूटर साइंस से प्रिपेयर करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। नेक्स्ट। So it was it. Thank you so much for the session. It was indeed informative. This is a comment from Dhriti Sood. She thanks you for this amazing session. Thank you. And I would like to share one thing. Every year I take almost 100 of the session at least in 100 engineering colleges. एंड जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से मैं लगभग 30-35 कॉलेजेस में सेशन ले चुका हूँ। बट आफ्टर दिस पैंडेमिक योर कॉलेज इज द फर्स्ट कॉलेज which has asked some good questions, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आई एम प्रेजिंग दिस और प्रेजिंग लाइक एनीथिंग कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने अच्छे क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे, इतना पेशेंसफुली क्वेश्चंस पूछोगे। मोस्टली क्या होता है कि लोग अटेंडेंस के लिए कॉलेज सेमिनार्स में बैठ जाते हैं या 10-15 मिनट बैठ करके और चले जाते हैं, बट आप लोगों ने इतने बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे, उसके लिए यू आर प्रेजवर्दी। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है कि अगर ये सब पैंडेमिक वगैरह ओवर हुआ तो आई विल कम टू योर कॉलेज एंड एटलीस्ट विजिट योर कॉलेज बिकॉज यू पीपल हैव शोन वेरी गुड इंटरेस्ट। मैं आईआईटीज में भी जाता हूँ, एनआईटीज में भी जाता हूँ। बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हैं या रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि फीस कितनी लगेगी। आई एम नॉट दैट पर्सन टू टेल यू कि फीस कितनी लगेगी। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मुझसे ये पूछिए कि एग्जाम कैसे निकालना है, एंड यू पीपल हैव आस्क्ड दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो यू आर praiseworthy, and thank you for providing this opportunity. Thank you for providing this platform to interact with you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. This was a really insightful session. We learned a lot from you, and this brings us to an end. For more such sessions, follow us on our Instagram and Facebook pages, and don't forget to subscribe on our YouTube channel. Stay tuned, and we'll see you in the next session. Thank you, sir. Thank you.